Joining us now is the campaign ambassador of Mission Swachhata and Pani, the one and only Akshay Kumar. Big round of applause, ladies and gentlemen, for... Thank you. Good to have you. Good to have you. Thank you so much. Thank you so much for being here, Akshay. Thank you very much. Appreciate it. Akshay, joining us now is Niti Aayog CEO Parameshwaran Iyer ji. Param Iyer ji, namaste. Akshay is with us. परम अय्यर सर, मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूं। आपको बधाई हो नीति आयोग का सीईओ बनने के लिए। आप ही ने मुझे, मैं आप दुनिया को बताना चाहता हूं, आप ही ने मुझे स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा था और मैं तब से लगातार 5 साल हो गए काम में लगा हुआ हूं, लेकिन आप मुझे छोड़ के नीति आयोग में चले गए। क्यों? So Akshay, जैसे आपने कहा, look, it's been a pleasure working with you, and now that I'm back in the country and in Niti, so we need to involve you with the much broader work which Niti Aayog does, both in terms of policy but also in terms of improving the effectiveness of government organizations and carrying forward the overall policy agenda of this government, which believes very much, जैसे आप जानते हैं, of taking policy to action. I think that's one of the trademarks of this government, of taking big ideas but programming them and implementing them on the ground. Absolutely. Whether it's basic services, whether it's scaling up digitalization on the economic front. So I think it's all about taking concepts, policies and programming them. अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने स्वच्छ भारत मिशन को घर घर में पहुंचाया, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी हम हिंदुस्तानियों को सैनिटेशन के एरिया में बहुत काम करना अभी भी जरूरत है? आपने सही कहा है कि हाइजीन इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन ऑन हाइजीन, बिकॉज देयर आर 3 पार्ट्स टिपिकली, और मिशन पानी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. जब हम वॉश बोलते हैं, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, सो अंडर द जल जीवन मिशन now there will be tap water in every household by 24. That's another huge program which is being delivered on the ground. Sanitation, most of the work has been done by way of open defecation, both urban and rural. But now this needs to be broadened to segregation, solid waste management. But hygiene is still important. आपको याद होगा Akshay, during the pandemic, you made a very important message for us, a spot on needing to stop spitting, thukna. So there are still habits in India which we need to overcome as a nation. उसके बारे में cleanliness will continue to be the focus of the agenda, whether it's in urban areas or rural areas. Sanitation, hygiene, water, these will continue to be very, very important agendas. In particular, हमारा tourism का इतना potential है, particularly all the iconic tourism places. It will be very important to bring them all to international standards of sanitation and hygiene, so that we can continue to promote and boost tourism. Sir, final question, Param sir, I want to ask you, we are calling for a call to action, 5 bullet points. So 1 or 2 from you. Let's look at waste segregation at home. All the organic waste which comes out of our kitchen, why can't we just do simple segregation between dry and wet, as everyone knows? A simple action which can be taken at home. And again, water usage, Mission Pani, how do you conserve water? When you're brushing your teeth, switch off the tap while you're brushing and just, switch on the tap to wash your brush and, to gargle. Simple actions like that can actually save water and also keep our environment clean. Thanks so much for joining us. Appreciate your time. And we wish you could have been here with us in person. Thanks very much. Pleasure to join you. Thank you very much. हम यहाँ टॉयलेट काफे पर मौजूद है और जो लोग आप देख रहे हो वो टॉयलेट सीट के ऊपर बैठे हैं। मकसद यही है यहाँ के छात्रों को और यहाँ के विजिटर को समझाने का कि आखिरकार सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मिलते हैं अनारबेन पटेल से, जो कि इस सफाई विद्यालय में एक्टिव है, ग्रामश्री की ट्रस्टी है और कई सालों से गाँव में जाकर ये काम करती है। कई सारे ताने भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी अपना ये मिशन है वो छोड़ा नहीं है। तो हम अनारबेन से बात करते हैं। अनारबेन, ये मिशन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जो सफाई विद्यालय है वो 1963 में ईश्वर भाई पटेल ने चालू किया था। इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ये ऐसा विद्यालय है जो गांधी जी के मूल्यों आधारित है। गांधी जी बोलते थे कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम। उन्होंने बोला था कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो अति क्षुद्र के घर में हो, जिससे मैं उनका दुख और दर्द समझ सकूं। तो 2 तरीके की बात गांधी जी ने बोली। एक था हार्डवेयर,
कि घर घर शौचालय बने, और दूसरा था कि हमारी आदतें कि जिससे हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गंदगी करते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो सफाई करते हैं, और जो अनपढ़ लोग हैं हम उनको अछूत मानते हैं। तो गांधी जी का ये विचार था कि जो अस्पृश्यता इसके साथ जुड़ी है वो भी निकले। तो सफाई विद्यालय ने जो काम किया है, करीबन 4 लाख लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग दी, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के टॉयलेट होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस होना चाहिए, एक साइड उसका भी काम किया। ईश्वर भाई पटेल खुद आर्ट पढ़े थे, आर्ट्स के स्टूडेंट रहे थे, बट पूरा साइंस उन्होंने इसके पीछे लगाया। उन्होंने इतना तक रिसर्च किया कि एक ह्यूमन कितना वेस्ट उसके बॉडी से निकलता है, उसको उन्होंने वे किया और उसको देख के फिर उन्होंने टॉयलेट के डिजाइन किए। आज इतना डेप्थ में जाना, और अपने देश में ये 60 साल पहले की बात हो रही है, करीबन यहाँ से ये सफाई विद्यालय से 5 लाख टॉयलेट बने हैं, और गांधी जी को मूल्यों को लेकर ये सफाई विद्यालय आगे बढ़ा है। मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि गांव गांव जाना, लोगों को समझाना। उस टाइम पे जब टॉयलेट बनते थे, सरकार की सब्सिडी जाती थी, फिर भी लोग उसमें स्टोर रूम बना देते थे, उसमें से उनको निकालना और छोटी छोटी आदतों तक उनको पहुंचाना। क्योंकि आज हम कितना भी बड़ा काम कर ले, हम 100% टॉयलेट बना भी दें, बट अपने देश की गंदगी निकल नहीं रही है, और उसका कारण क्या है? हमारी छोटी आदतें। जो आदतें अगर हम खुद निकालेंगे, हम खुद वो मिशन में जुड़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है, तो हम खुद को अपने आप में बदलना होगा। और ये चीज सफाई विद्यालय ने पकड़ी, गांव तक, स्कूल तक ये लेके गए। स्कूल सैनिटेशन पे भी बहुत बड़ा काम हुआ है यहाँ से। हमारा एक बहुत अच्छा नारा है कि सफाई आंदोलन जिंदाबाद, सफाई आंदोलन जिंदाबाद। उसके साथ में हम जोड़ना चाहेंगे कि हम सब एक है, हम सब एक है, और पानी बचाए वो नेक है।